Dear students, in the last lecture, we have started the different configuration of the transistor. First of all, we have done common base configuration, and in that, this common base configuration, as you can see from this circuit diagram, that this transistor is in common base mode, and input is given through this emitter base junction, and output is taken from this collector base junction. And we have seen the input characteristic. When we talk about input characteristic are taken from the input part, and it is the graph between the input current, which is emitter current here, and the emitter base voltage, which can be changed by changing this R1 with the battery VEE. Okay, and this voltage, it is measured with this voltmeter, and current is measured with this milliammeter. And we can see that graph, it is like an forward bias characteristic of a junction. And we have seen that as this VC increases, as the collector voltage increases, then this current also increases for a particular emitter. Then we have completed the output characteristic, and in output characteristic also we have seen that with the change in this collector voltage, which is output voltage, the output current, which is called collector current here, it firstly increases very rapidly, and then it becomes saturated. And I have told you people in the lecture that firstly it increases because mm, as IE increases, the number of charge carriers which are not reaching the junction in the complete quantity, the number of charge carriers which are reaching the collector junction, that increases firstly. When then all the charge carriers which are coming from the emitter part, they all reach collector part, and this collector current, it becomes saturated. Okay, and then I have told you people also that as this IE increases, it means number of charge carriers which are there in the active part of the transistor, it means they are increasing. And when they are increasing, then obviously when we have applied a voltage over this collector junction, then obviously when the number of charge carriers which are coming from the emitter part, they are increasing, so obviously the more charge carriers, they will cross this collector junction, and that's why this characteristic is in the increasing mode. The higher collector current we get at a particular character voltage. Okay, then we have, I think, left our last lecture here, the transfer characteristic of a common base configuration. As you can see that when we talk about transfer characteristic, this transfer characteristic basically deals with the input current and output current, that how much current from the input part that is transferred to the output part. And obviously when we talk about output current is this collector current, and input current is emitter current. So it means we are taking a graph uh, in this collector current with emitter current, means आउटपुट करंट का बिहेवियर हम देख रहे हैं। जैसे जैसे हम एमिटर का करंट बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्ज के जैसे हम वहाँ से बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर करंट हमने सपोज किसी पे कांस्टेंट कर दिया, हमने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, तो जैसे जैसे हम एमिटर करंट बढ़ाते जाएंगे, ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस दैट वैसे वैसे हमारे पास जो चार्ज करियर्स हैं, जो कि दिस जो 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 कि कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेंगे. And we can see from the graph that this increase is in a regular mode. In a regular mode, we can see that the graph is a straight line. Straight line का means क्या है कि जो 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 हमारा इंक्रीज है वो कांस्टेंट स्लोप के साथ है, वो कांस्टेंट स्लोप के साथ है. और जो कांस्टेंट स्लोप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको जो हम नाम देते हैं, वो नाम देते हैं हम अल्फा का. अल्फा इज बेसिकली द करंट गेन. गेन की जब हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो गेन वर्ड यूज कर रहे हैं, गेन वही चीज है जो हम एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं. एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? सिंपल आउटपुट और इनपुट. जो हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, जो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो गेन क्या है? आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट. आउटपुट करंट
कलेक्टर करंट, इनपुट करंट, एमिटर करंट। इसका मतलब जो कलेक्टर करंट का और जो एमिटर करंट का जो रेशियो होगा, दैट विल गिव अस द करंट गेन। एंड नॉर्मली इन अ ट्रांजिस्टर, हमने जब इसकी बेसिक वर्किंग की थी, मैंने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया था कि सिर्फ 5% ही मैक्सिमम हमारे जो चार्ज करियर्स हैं, दे आर रिकम्बाइंड with the charge carriers which are coming from the emitter part, and rest of the 95% जो charge carriers हैं, they reach the collector part, and they obviously when they reach the collector part, then they cross this collector base junction, and when they cross this collector base junction, then it means they constitute the collector current, they constitute the collector एंड when 95%, और हमने देखा था आउटपुट करेक्टरिस्टिक में कि एक टाइम के बाद वो सेचुरेशन आ जाता है, कि मीन्स हमारे पास जो 95-6% है, दैट इज ए कांस्टेंट, वो कांस्टेंट में हमारा फ्लो करता चला जाएगा। तो 96% का जब अगर हमारा जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, 96% ऑफ द इनपुट चार्ज कैरियर्स दे आर रीचिंग द आउटपुट पार्ट, इट मीन्स ऑब्वियसली जो स्लोप है हमारा, जो आउटपुट करंट और इनपुट करंट है, वो ऑब्वियसली हमारा कांस्टेंट होगा। जब वो कांस्टेंट होगा, हमें पता है कि जब हम कांस्टेंट स्लोप की बात करते हैं, तो इसका मतलब जो ग्राफ है दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी स्ट्रेट। तो जब हम इस करंट गेन को डिफाइन करते हैं, तो करंट गेन क्या हुआ, आउटपुट और इनपुट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक बेटा आता है एसी करंट गेन, एक आता है डीसी करंट गेन। जब हम एसी करंट गेन की बात करते हैं, इट मीन्स हम एक रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या है कि हम मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसका इसका हमने एमिटर करंट भी नोट किया, इसका हमने कलेक्टर करंट भी नोट किया, एक दूसरा पॉइंट फिर हमने यहाँ ले लिया, इसका एमिटर करंट भी नोट किया, इसका कलेक्टर करंट भी नोट किया। फिर हमने क्या निकाला, आईसी जो पहले पॉइंट का कोरस्पोंडिंग था माइनस आईसी जो दूसरे पॉइंट का कोरस्पोंडिंग है, दैट इज डेल्टा आईसी। और जो आई ई पहले पॉइंट के कोरस्पोंडिंग है माइनस जो दूसरे पॉइंट के कोरस्पोंडिंग है, दैट इज डेल्टा आई ई, एंड कीपिंग वीसी कांस्टेंट। ये क्योंकि हमने इस स्लोप के लिए जो कलेक्टर वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो जो डेल्टा पार्ट आएगा आउटपुट का और जो डेल्टा पार्ट आएगा इनपुट का, उनका जो रेशो होगा दैट विल गिव अस द करंट, दैट विल गिव अस द करंट गेन। और जब हम डीसी की बात करते हैं, डीसी और एसी में सिर्फ इतना सा फर्क है, मैं आपको बता दूं, जब हम डीसी की बात करते हैं तो हम चेंज नहीं लेते डीसी के लिए। डीसी वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एनी पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो एमिटर वोल्टेज की वैल्यू है, तो जो आईसी ओवर आईई होगा दैट विल बी अल्फा डीसी, दैट विल बी अल्फा डीसी। ठीक है, तो जी ये हमारा एसी और डीसी में फर्क आ जाता है। फिर हम अगर इसको करंट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिराइव करते हैं, तो ये हमने जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जब हमने जो ट्रांजिस्टर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो की थी, तो हमने डिराइव की थी। वहाँ पे हमने बताया था कि जो कलेक्टर करंट होगा वो किसके कारण से होगा, जिसने मेजोरिटी चार्ज करियर हमारे पास पीछे से फ्लो हो के आ रहे हैं, और प्लस हमारे पास जो कलेक्टर बेस का जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण होगा, उनके कोरस्पोंडिंग हमारे पास टोटल आईसी कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, और आईसी को अगर हम अल्फा डीसी की टर्म में निकालें, तो वो हमारे पास वही होता है कि अल्फा डीसी इंटू आई ई प्लस आई सी ओ। यहाँ पे हमने आई सी ओ में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा क्या आएगा, आई सी माइनस आई सी ओ डिवाइडेड बाई आई ई। हम यहाँ आई सी माइनस आई सी ओ डिवाइडेड बाई आई ई, इट इज अल्फा डी सी, बिकॉज आई सी ओ हमारे पास क्यों है, क्या है, इट इज a current due to minority charge carriers, and obviously it will be small, ऑब्वियसली इट विल बी स्मॉल। जब ये स्मॉल होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई सी बाई आई ई। तो ये तो है हमारे पास करंट से निकालना, तो जो हम थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और जो मैंने आपको ग्राफ से बताया था इसमें कि एक पॉइंट लिया, उस पर आई ई नोट किया, उससे कोरस्पोंडिंग आई सी नोट किया, आई सी और आई ई का जो रेशियो आएगा दैट विल गिव अस अल्फा डी सी, दैट विल बी प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है उसके पॉइंट से। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट कीपिंग कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड डीसी करंट गेन इन कॉमन बेस configuration. Although in this analysis
And in this topic, we have taken it as and this is only the approximation. We have taken this 96%. But in actual practice, when we talk about alpha, alpha की जो value है, it is generally it is 0.99. 0.99. It means जो हम बात कर रहे थे कि only 5% of the charge carriers they are neutralized in the base. वो 5% भी नहीं है. It is only 1%. 1%. Majority of the charges, maximum charges which are coming from the emitter part, they reach the collector. Only a very few, only a very few, maybe 1%, maybe less than 1%, only they are neutralized in the base region. Only they are neutralized in the base region. So obviously, when very small number is neutralized, and we see the fraction of the emitter charge carriers which is reaching to collector part, that is nearly 1. Nearly 1. It is not 1 because 100% of the charges they are not reaching collector. It is not 1, but it is nearly 1. It is nearly 1. The value is 0.9 to 0.99. 0.99. Okay, so this is DC current, and obviously this is all about our common base configuration. And the next configuration which comes, we have done earlier also. There are three configurations. One is common base, second one is common emitter, third one is common collector. तो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन पे अगर हम चलते हैं तो जो हमारी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. कनेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, आई थिंक मिसटाइप हो गया. तो इट इज कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा एमिटर पार्ट है, एमिटर टर्मिनल है, दैट इज कॉमन बिटवीन द इनपुट पार्ट एंड द इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो कॉमन टर्मिनल होगा वो हमारा एमिटर होगा. तो ये हमने कोई भी एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया. एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने ये देखो कि यहाँ पे जो एमिटर पार्ट है इट इज़ कॉमन, इट इज़ participating in input section as well as in output section, and a battery which is named as VBB because we have applied it as on the base. So this VBB battery, it is giving the forward biasing to this base emitter junction, and the second battery which is in output section, it is VCC, and it is giving the necessary biasing to the collector emitter part, collector emitter part. लेकिन हम चाहे कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमिटर कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे देखो बैटरी कलेक्टर और एमिटर के बीच में लगा रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये बैटरी इतनी होनी चाहिए कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है दैट रिमेन्स ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. दैट रिमेन्स ऑलवेज रिवर्स. ओके, एंड ऑब्वियसली द आउटपुट इट इज टेकन फ्रॉम द कलेक्टर रेजिस्टेंस व्हिच इज रेजिस्टेंस इन द कलेक्टर. यू कैन सी. ठीक है, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इस आरसी के अक्रॉस मिल जाएगा. तो सिमिलरली इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपी और पीएनपी में पहले भी बताया कि जो डिफरेंस है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एरो. ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ द एरो है इट इज इनसाइड देन द ट्रांजिस्टर इज पीएनपी ट्रांजिस्टर, एंड इफ इट इज आउटसाइड द ट्रांजिस्टर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर. तो सिमिलरली इज दिस पीएनपी ट्रांजिस्टर the forward biasing of base emitter junction is given by this VBB, and you can see in the both configuration that the terminal are changed. In this terminal, because it is NPN, so this junction is P, so P is connected to positive terminal, but here it is PNP. तो जो ये N टर्मिनल है बेस का, इट इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया कि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इट रिमेन्स ऑलवेज रिवर्स बायस्ड. इट रिमेन्स ऑलवेज रिवर्स. तो ये हमने दोनों कॉन्फ़िगरेशन दिखाई. और अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. हम इसमें देख सकते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कि हमने एमिटर को कॉमन रखा, और दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जो हमने इनपुट सेक्शन है उसके अंदर माइक्रो एमिटर हम यूज़ करेंगे बेस करंट को मेज़र करने के लिए, करंट को मेज़र करने के लिए. ये एक हमने रियोस्टेट लगाया है, और जो है R1 है इसको हम वेरी करके, इस टर्मिनल को हम वेरी करके जो इफेक्टिव वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड इन दिस बेस एमिटर जंक्शन, वी कैन वेरी दिस वोल्टेज यूजिंग दिस R1. एंड
this voltmeter V1, it will measure the potential difference between this base and emitter. This base and emitter. This biasing it is given by this battery, which is VBB. जो इनपुट सेक्शन है वो हमारा इतना सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट करंट है वो माइक्रो एम्पीटर से ही नोट होगा। अब माइक्रो क्यों यूज़ किया, पहले हम मिली यूज़ कर दे रहे हैं, रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास जो बेस करंट की वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मैंने पहले भी बताया कि इट इज़ ओनली लेस देन 1% इवन। जब ये लेस देन 1% होगा तो ऑब्वियसली हम जो अ, जो करंट है वो मिली एमीटर के लिए बहुत स्मॉल होगा। जब वो बहुत स्मॉल होगा तो हम मिली एमीटर से उसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसके अंदर माइक्रो एमीटर। और जो आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन के अंदर जो आउटपुट करंट है विच इज कलेक्टर करंट, इट इज मेजर्ड यूजिंग मिली एमीटर। V2 इज द वोल्ट मीटर विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन दिस कलेक्टर एमीटर विच इज नेम्ड एज VCE। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमारी VCE होगी विच इज मेजर्ड बाई V2। जो आउटपुट करंट हो गया वो हमारा IC होगा विच इज मेजर्ड विद दिस मिली एमीटर। एंड द वोल्टेज इट इज चेंज्ड विद दिस टर्मिनल और विद दिस आई मस्ट से इट इज रियोस्टेट R2, और R2 को चेंज करके हम इसकी पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी की भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास इस तरह से आती हैं। इनपुट की का मतलब क्या है कि इनपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज VEB और इनपुट करंट के बीच में जो ग्राफ होगा, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। तो हम VCE को कांस्टेंट रखेंगे और VEB और IB के अंदर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास एमीटर बेस जो वोल्टेज है अगर वो इंक्रीज होगी तो हम फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो करंट है वो इस तरह से अब्रप्टली इंक्रीज होगा जैसे हमारे पास फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट VC के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, एज VC इंक्रीजेस, ये 2 वोल्ट के लिए है, ये 4 वोल्ट के लिए है, ये 6 वोल्ट के लिए है। मान लो मैं इस 0.3 वाले टर्मिनल पे बात करता हूँ, VB मैंने 0.3 की। अब ये देखो, जब VCE मेरे पास 2 वोल्ट थी, करंट यहाँ पे था, ठीक है। जब VCE 4 वोल्ट हुई, करंट कम होके यहाँ पे आ। जब VCE 6 वोल्ट हुई, करंट कम होके यहाँ पे आ। इसका मतलब जैसे जैसे हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारा बेस करंट है एट ए कांस्टेंट एमिटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग क्या है वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो ये बेस करंट है वो डिक्रीज क्यों होता है? अगर हम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कीपिंग एमिटर बेस वोल्टेज कांस्टेंट, तो वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? हमने एमिटर बेस कांस्टेंट जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट की। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एमिटर से आ रहे हैं दे आर कांस्टेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कलेक्टर से और एमिटर के बीच का पोटेंशियल बढ़ाता हूँ। अब जब हम कलेक्टर से एमिटर के बीच की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा इसके लिए, थोड़ा सा पीछे आके, हाँ यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ पे। अब हमने कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की बात की। जब हम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज की बात करें, इसका मतलब वो क्या है कि कलेक्टर बेस प्लस बेस एमिटर, कलेक्टर बेस प्लस बेस एमिटर। जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ कीपिंग दिस कांस्टेंट, इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरे पास बढ़ रहा है। जब ये वाला पार्ट मेरे पास बढ़ रहा है, वो इधर से चार्ज करियर उतने ही आ रहे हैं। जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या है, ये बेस के अंदर चार्ज करियर्स को इतना टाइम ही नहीं दे रहा कि वो रिकम्बाइन कर पाए। जैसे ही एकदम से क्रॉस किया, इस यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और वो एकदम से उसको कैच कर लेगा। तो क्या है, जब उनको बेस रीजन के अंदर टाइम ही कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकम्बिनेशन दैट डिक्रीजेस, and this when this probability of recombination decreases, then this base current it will decrease. That is why when we change yes, when we increase this corrector emitter voltage, तो हमारे पास जो बेस करंट है वो डिक्रीज कर। अब इनपुट रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, भाई दो पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट के बीच में हमने VBE निकाल लिया, डेल्टा VBE निकाल लिया, उनके कोरस्पोंडिंग करंट निकाल लिया, IB, तो VC कांस्टेंट हमारे पास ऑब्वियसली, क्योंकि IB की वैल्यू बहुत कम है तो RI की वैल्यू ज़्यादा आएगी, RI की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एंड ऑब्वियसली जो इनपुट रेजिस्टेंस है हमारा वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में
हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा। ठीक है। फिर व्हेन वी मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, तो दिस इज आउटपुट करेक्टरिस्टिक। आउटपुट करेक्टरिस्टिक भी जो वैसी ही हैं, सिर्फ चेंज क्या है कि इसमें हमारे पास सारी पॉजिटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। तो अगर मैं देखूं जब इसको, तो हम कुछ पॉइंट इससे डिराइव कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे वीसी बढ़ेगी आईसी बढ़ेगा। जैसे जैसे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो कलेक्टर करंट हमारा बढ़ेगा, और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर को अपनी तरफ खींचेगा। वो शुरू में बढ़ेगा और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो कांस्टेंट। ठीक है। इवन एट आई बी इज इक्वल टू 0, कोई भी बेस करंट हमारे पास नहीं आ रहा। जब कोई भी बेस करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा। कोई भी रिकम्बिनेशन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब पीछे से भी कुछ नहीं आ रहा। जब पीछे से भी कुछ नहीं आ रहा, जब पीछे से भी कुछ नहीं आ रहा, एमिटर से भी कोई चार्ज कैरियर नहीं आ रहा, तभी तो रिकम्बाइन नहीं हो रहे, तभी तो बेस करंट नहीं आ रहा। उस केस में कलेक्टर करंट भी हमारा 0 होना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, there is a very small current. There is a very small current which is named as a reverse saturation. It is named as a reverse saturation current that flows in the transistor. पहली चीज। ठीक है। तो जो IB0 पे भी हमारे पास कुछ करंट आता है, और वो करंट वो होता है जो रिवर्स सेचुरेशन करंट हो, और उसको हम बोलते हैं कि करंट इट इज ICEO, कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन। व्हेन बेस इज ओपन, ओपन का मतलब है कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, कोई करंट नहीं है वहां पे, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सेचुरेशन करंट। रिवर्स लीकेज करंट हमारे पास आ जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास IB इंक्रीज होगा, IB इंक्रीज कब होगा? क्योंकि IB तो हमारे पास 1% है। IB इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि एमीटर से चार्ज कैरियर अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहे हैं। जब इंक्रीज होंगे तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो भी कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगा। जब 1% इंक्रीज होगा तो 99% भी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो हमारे पास जैसे जैसे IB बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे जो IC की वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे एक अलग चीज आपको देखने को मिल रही है कि हम रीजन्स लिख रहे हैं। ये हमने कट ऑफ रीजन लिखा, ये हमने सैचुरेशन रीजन लिखा, ये हमने एक्टिव रीजन लिखा। जनरली जो हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है वो काम करता है एक्टिव रीजन। सैचुरेशन रीजन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो करंट है वो अनलिमिटेड हो गया, बहुत ज़्यादा करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। हम आगे करेंगे इनको डिटेल्स में, यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। और कट ऑफ रीजन में क्या है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा, वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा। तो ये रीजंस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके पास यही दो चीज़ें थी कि जब VC हमारा बढ़ता है तो IC बढ़ता है, और एट ए व्हेन IB इज इक्वल 0 बट स्टिल देयर इज सम कलेक्टर करंट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रिवर्स लीकेज करंट। एंड एज IB increases, it means IE is increasing. When IE is increasing, then IC will also increase. तो हमारे पास ये इंक्रीज मिलता है। ठीक है। तो ये दिस इज the output characteristic of a common emitter configuration. Obviously हम जब आउटपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं, अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो जो स्लोप है दैट इज नॉट एज स्टीप एज इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम इनका स्लोप निकालेंगे, या मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो हमें डेल्टा VE ओवर डेल्टा IC देगा, उसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हम देखेंगे कि जो जो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है कीपिंग IB कांस्टेंट, तो उसकी जो वैल्यू है दैट इज, क्योंकि कॉमन बेस के केस में दैट इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि हमारे पास नियरली फ्लैट रीजन आ रहा है। इसके अंदर नियरली फ्लैट नहीं, हमारे पास इंक्रीज होकर फ्लैट हो रहा है। तो अगर हम उस रीजन के अंदर लेके चलें, उस रीजन में इसको देखते हैं, तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई तो होगा, बट इट विल नॉट सो हाई एज इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से कम है। तो अब यहाँ से हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें आ गई। जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, उसके केस में हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज वेरी हाई। जब हम कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं तो आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल बट इट इज ग्रेटर देन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट रेजिस्टेंस इज लेस देन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बीच में आ गई। ठीक है। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की बात देखें तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट करंट और इनपुट करंट का ग्राफ है। आउटपुट करंट हमारे पास कलेक्टर करंट है, इनपुट करंट हमारे पास बेस करंट है। तो जैसे जैसे बेस करंट इंक्रीज होगा
वैसे वैसे जो कलेक्टर करंट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बेस करंट इंक्रीज हो रहा है, जब 1% इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स समवेयर द चार्ज कैरियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द एमिटर पार्ट दे आर इंक्रीजिंग, व्हेन दे आर इंक्रीजिंग इट मीन्स कलेक्टर करंट इज also increase, ठीक है। बट a very small change in base current will produce a very large change in collector। रीजन क्या है कि जब हम बेस करंट की बात कर रहे हैं तो जो बेस करंट है वो हमारे पास माइक्रो एम्पियर की रेंज का है, तो जो हमारे पास कलेक्टर करंट है वो हमारे पास मिली एम्पियर की रेंज का है। एंड माइक्रो एंड मिली यू कैन इमेज ए वेरी स्मॉल चेंज इन द बेस करंट, अगर वो हल्का सा मिलीमीटर में भी चेंज करता है तो दैट इज एटलीस्ट 1000 टाइम्स मोर देन द इनपुट पार्ट। दैट्स वाई अगर हम यहाँ पे गेन की बात करें तो गेन इज वेरी हाई, तो जो हमारे पास गेन की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम बीटा एसी की बात कर रहे हैं, गेन हम बीटा के टर्म में करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो वही 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा आई सी निकाल लिया, डेल्टा आई भी निकाल लिया, उनकी वैल्यू यहाँ रख दी एट ए कॉन्स्टेंट कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ठीक है। जो डेल्टा आई भी हमारे पास ऑब्वियसली जब माइक्रो एम्पियर की रेंज का होगा, डेल्टा आई सी हमारे पास मिली एम्पियर की रेंज का होगा, तो ये हमारे पास थाउजेंड्स की रेंज में तो आएगा ही आएगा, 10⁻³ के ऑर्डर से ज़्यादा ही ऑर्डर का होगा अगर हम गेन की बात, ठीक है। तो द एसी करंट गेन इन कॉमन एमिटर सर्किट इज वेरी लार्ज एज कलेक्टर करंट इज मेजर्ड इन मिलीएम्पियर्स एंड बेस करंट इज मेजर्ड इन, it is very high, and it is a very positive thing for this common emitter configuration that the current gain in this configuration is very high, okay। तो अगर डीसी करंट गेन मैंने बताया, जैसे हमने पिछले उसके अंदर कॉमन केसेस में क्या था कि किसी एक पॉइंट को ले लो, किसी एक पॉइंट को हम बेस करंट की वैल्यू मेजर कर लेंगे, उसी पॉइंट पे हम कलेक्टर करंट गेन निकाल लेंगे, दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमें डीसी करंट गेन बता, ठीक है। तो डीसी करंट गेन ऑफ in this common emitter configuration it is defined as the ratio of collector current to the base current at a constant collector emitter, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की भी तीनों करेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं छोड़ते हैं, तो इससे आगे का जो पार्ट है वो फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने किया है, हमने ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक की हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, फिर हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम समझा, फिर हमने उसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक की, उसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक की, उसकी ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक की, उसका करंट गेन निकाला, ठीक है। तो ये पार्ट हमने आज किया, और इससे आगे का फिर जो पार्ट है वी विल स्टार्ट दैट पार्ट इन अवर नेक्स्ट, ठीक है। तो फॉर टुडे थैंक यू।